May I please request Shipra ma'am to address the audience. What's the meaning of empowerment? Empowerment is to have freedom, liberty to take decisions of different aspect of life, whether it is career, whether it is health, whether it is your life. Friends, when we talk about empowerment of women through education, it reminds me, sir, an incident which I read somewhere. एक बार बहुत सारे लोग स्वामी विवेकानंद जी के पास गए. You all know, Vivekanand ji did a lot of work about youngsters. If you read about the quote of Vivekanand ji, so motivating for the youngsters. Then they ask, Sir, you did so much for the youngsters. लेकिन इन महिलाओं का क्या करना है? Then Vivekanand ji asked, क्या करना चाहते हैं आप? Then he said, कल हम 3-4 पुरुष आएंगे and let's have a meeting कि इन महिलाओं का क्या करना है. Then Vivekanand ji just smiled and said, just educate them and let them decide their own destiny. Then you really don't need to do anything for women. And I truly believe that education do wonders. An educated female, an empowered female can extremely vibrant and enriching for the society. But if she is not educated, if she is not empowered, she become a burden for herself and the society as well. But the question is how to educate. You, who you all are sitting, just represent 5 to 10%. But the ground reality is very different, very different. There are lots of issues, lots of challenges about education. Here, I will share my own experiences on the ground reality. I will not quote any data, any records from the government. I will just share my experiences as Raha Ek Mission in last 5 years. Connect more than 5,000 students from the road to the school. And I proudly say more than 3,000 girls connected to the education. What are the challenges I have faced? Students, I really want, आज मैं आपको जो बोल रही हूँ, अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिएगा. When you observe, then you will come to know about the problems, then you will speak about the solution. The major issues, as we all know, Delhi has good schools. हम सबको लगता है कि सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल हैं, लेकिन नहीं. द बिगेस्ट रीजन जहाँ स्कूल हैं उसके आसपास स्लम्स नहीं हैं. हैव यू ऑल ऑब्जर्व दिस? आपने किसी अच्छे स्कूल के आसपास स्लम देखा है दिल्ली में? देन द रिवर्स, किसी स्लम के आसपास आपने स्कूल देखे हैं? आपने स्लम के आसपास कितने स्कूल देखे हैं? A single example? You can't give a single example of that. But this is the biggest reason for the lower strata not to connect with the school. क्योंकि transportation cost बहुत आता है. We say government is providing free education. But the thing is, transportation, it takes minimum 2,500 rupees for one child. And in the slums, in the lower strata of the society, at least 3-4 siblings are there. So, because of that, बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते हैं. यदि पेरेंट्स को डिसाइड करना होता है amongst the girl and boy, तो they decide to spend on a boy. They prefer girl to stay there. So this is the biggest challenge. Second, the girl has to take care of the younger sibling. If there is a financial problem, तो family
prefers to send a girl to the school, not a boy. Why it is happening? Can any one of you tell me why it is happening? Because we have not educated every female. जो घर की फीमेल है उसको पता ही नहीं है कि what is education. जो आपकी फैमिली से they are different. They just belong to 5-10% of the society. This is the biggest irony. Usually women are said to be the fair sex. But everywhere we are getting unfair. Huh? Are you all agree? Have you ever seen this type of things in your life? Have you ever? Although I am not against of any gender, I am not saying कि all males are like that. Usually it is said, sir, usually it is said कि behind a successful man there is a woman. But I have seen many examples, even my personal example. Behind a successful woman there is a understanding husband, there is a understanding family. So here I am not talking against any type of gender. एक मानसिकता के अगेंस्ट मैं बात कर रही हूँ, एक सोच के अगेंस्ट बात कर रही हूँ जो किसी को भी रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आगे बढ़ने से रोकती है. जब भी हमारे यहाँ यूजुअली आपने सुना होगा ग्रैनीज, मदर, यदि बॉय रोता है, एक मेल रोता है, तो दे सेड डोंट क्राई लाइक ए गर्ल, लड़कियों की तरह रोना बंद कर. बट एट द सेम टाइम व्हेन ए गर्ल गॉट असर्टिव, तो दे सेड नीचे आवाज में बात करो, झुककर चलना सीखो, मर्यादा में रहकर उड़ो, मर्यादा में रहकर उड़ो. बट here I want to quote Ayn Rand, that quote I really love. That is not the question. Who is going to let me? That is not the question. Who is going to let me? Is it who is going to stop me? आज से हर बच्चे का irrespective of gender, आप सबका लाइफ का ये कोट होना चाहिए. अपने फोन के स्क्रीन पे लिख के रखिए. आप लोग के रूम में जो यूजुअली स्टूडेंट्स को एक बोर्ड लगाना चाहिए, उस बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख के रखिए, द क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू स्टॉप मी एंड सी द मिरेकल. एक सेंटेंस जो हमेशा बोला जाता है, मर्यादा में रहकर उड़ो, मर्यादा में रहकर उड़ो. तो मैं बोलना चाहूंगी, डोंट टेल मी the sky is the limit. I totally disagree. Don't tell me the sky is the limit when you already have footprints on moon. तो sky से भी बहुत बड़ा आगे आसमां है. सिर्फ आपको अपने आप में विश्वास जगाना है, कोशिश करनी है अपने आसपास की एक गर्ल को थ्रू मेंटरिंग. Raha is also provide internship to all the students and we got a wonderful results out of you, क्योंकि आपका युवा youngsters का जो विजन है that is very different. तो I request all of you, अपनी लाइफ में कम से कम एक स्टूडेंट को, एक गर्ल को कनेक्ट करो एजुकेशन से. आसपास में आज से जाके सर्च करना, आपकी जो हेल्प है, आसपास में बहुत सारे लोग हैं, उनके रीजंस क्या है. बेटा बहुत छोटे रीजंस आएंगे जिसके लिए ये आदमी इलिटरेट पूरी लाइफ रह जाता है. किसी ने मुझे बोला कि शिक्षा बहुत महंगी है, शिक्षा बहुत महंगी है. तो मैं कहती हूँ एक बार अशिक्षा को ट्राई करो, एक बार इलिटरेसी को ट्राई करो. हर कदम पे स्ट्रगल है, हर कदम पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन है. आज एक फीमेल जो इलिटरेट है वो सेम काम कर रही है. आई एम वर्किंग विद द माइग्रेंट पीपल. दिल्ली में सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट लोग हैं वो मजदूर का काम करते हैं, डेली वेजर्स का काम करते हैं. डेली वेजर्स सेम काम एक फीमेल करती है लेकिन उसको सैलरी हाफ दी जाती है. क्यों? इलिटरेसी. आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं
You are harassed because you are not illiterate. तो यदि शिक्षा महंगी है तो एक बार अशिक्षा को ट्राई करके देखो। बहुत छोटे छोटे रीजंस हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द रीजन, आप उस पे वर्क करो। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, उनको ये नहीं पता होता आधार कार्ड कैसे बनेगा। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं हर साल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए लोगों को एडुकेट करते हैं कि कैसे आधार कार्ड बनाया जाए। हो सकता है अभी आप रियल वर्ल्ड से बहुत यंग हो, बहुत दूर हो, पर कोशिश करो बेटा एक बार उन लोग के पास जाने की, और तुम्हें समझ आएगा कि इतना छोटा कारण भी हो सकता है क्या पूरी जिंदगी अशिक्षित रहने का। उस कारण पे वर्क करो। मैं तुमको बताती हूँ, आई एम ऑफिशियली अपॉइंटेड एज ए सोशल वर्कर टू दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। तो वहां पे एक लड़की थी, शी यूज्ड टू बी टॉपर, 10th का बोर्ड था, एंड देन प्रिंसिपल कॉल्ड मी कि मैम वो बच्ची स्कूल नहीं आ रही है, और बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड थी। मैं उसके घर गई, मुझे पता चला, तो आपको पता है कितना छोटा रीजन था उसके स्कूल में आने का, जो बच्ची में पोटेंशियल था टॉप करने का, और वो पहले टॉप करती आ रही थी। उसकी मदर ने बताया कि शी गॉट ए फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर, एंड शी सेड कि मेरे पास मैडम इतना पैसा नहीं है कि हम इसको डेली ऑटो से भेज सके। इतना सिंपल रीजन था, पर उसके लिए इतना बड़ा रीजन था। देन आई वेंट टॉक टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर ने बोला कि मैम हम इसको नीचे रूम दे देंगे। हमारे वॉलंटियर्स ने उसको ऑटो का पैसा दिया। देन द प्रॉब्लम वाज वेरी सिंपल टू गेटिंग अ व्हील चेयर, क्योंकि उसको वहां से ले। मैं आपको रीजंस बता रही हूँ, इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि यूजुअली सोशल वर्क को कनेक्ट किया जाता है कि यू नीड मनी फॉर द सोशल वर्क। ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। मैंने आज तक इतने बच्चों को सर्व किया है जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। व्हील चेयर के लिए आप लोग की आजकल टेक्नोलॉजी सो डेवलप्ड, आप अपने ग्रुप में डालिए वी नीड अ व्हील चेयर फॉर द स्टूडेंट। बिलीव मी, जब आप आगे बढ़ते हो ना, पूरी कायनात आपको मदद करती है। चाणक्यपुरी में नुपुर जानती है, आई हैव क्रिएटेड अ लेडीज ग्रुप कॉल्ड स्टे कनेक्टेड, वेयर वी ऑल आर कनेक्टेड। I just put a message कि I need a wheelchair just for 10 days, and I got tremendous responses for the wheelchair. वहां से हमने ऑटो किया, उसको हमने व्हीलचेयर दिलाया, और उसने पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज से। आपको पता है कि आप लोग के लिए कॉपीज, यू आर ब्लेस्ड। यहाँ जो आप लोग बैठे हो, यू गाइस आर ब्लेस्ड पीपल। स्टेशनरी की वैल्यू नहीं है, पर आपको पता है हर साल 30 to 40% बच्चे सिर्फ स्टेशनरी की वजह से ड्रॉप आउट होते हैं। सिर्फ वो बच्चे कॉपी पेंसिल स्टेशनरी नहीं खरीद पाते हैं। तो मेक अ पॉइंट, किसी बच्चे को अपने जीवन में सिर्फ 5 रजिस्टर और 1 दर्जन पेन देना, तुम्हारी वो छोटी सी मदद, बिलीव मी। और यदि ऐसा बच्चा ना मिले तो मेरा मैम के पास नंबर है, मुझसे बात करना। इतनी छोटी सी मदद बेटा, वो उसको पढ़ाएगी, और तुम्हारा बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन होगा लिटरेसी ऑफ इंडिया में। हमारी कंट्री में यूजुअली काउंट किया जाता है लिटरेसी जो साइन कर सके, बट दैट टाइप ऑफ लिटरेसी कांट एम्पावर ए वुमन। उसके लिए यू नीड स्किल्स, you need management, and in the present scenario you need digital literacy. Digital literacy can empower a woman. Again I will quote one example. मेरे पास जो राह के बच्चे पढ़ते हैं, हमने उनको डिजिटली, हमारे ही बच्चों ने, मैं आपको बता रही हूँ आपके जैसे ही बच्चे, मेरे अपने भी बेटा है, हम बच्चों ने एक चैलेंज लिया, उनको फ्री में मेरे ही घर के गार्डन में हमने वर्ड, एक्सेल, पीपीटी प्रेजेंटेशन जो बेसिक ये था, उसके बाद टू एम्पावर टू गेट अ जॉब। तो रिसेंटली मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसलिए बता सक रही हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एक छोटी सी चीज कैसे किसी की जिंदगी बदलती है। तो हमारे यहाँ से जितनी 12th पास आउट गर्ल्स थी राह के थ्रू, हमने उनको, आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड ए मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म, हमने उसका टोटल काम सिर्फ 3 घंटा, एंड वी आर पेइंग 12,000। इससे क्या हुआ, जब जॉब मिला तो और मदर्स जो मेरी मेड के आसपास की और मदर्स थी, वो अपनी बच्चियों को लेके आई
उनमें ये विश्वास जगा कि एजुकेशन कैन एम्पावर देम, क्योंकि वो लोग एजुकेशन को पैसे से तोलते हैं। तो यदि मैं उनको सिर्फ पढ़ा के छोड़ देती तो ये ट्रस्ट कभी नहीं आता। तो हमें एम्पावर करना पड़ेगा, एम्पावर करेंगे तभी वो लोग पैसा कमा पाएंगे। अभी देखो इसको जो चैलेंजेस है, इश्यूज हैं, आप सब पढ़ते हो, बहुत सारे नेट पे हैं, तो आई विल नॉट मेंशन मच। बहुत सारे इश्यूज हैं। आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, सो आई विल मेंशन हाउ टू वर्क, कैसे हम दूर कर सकते हैं these challenges, this issue. In my personal opinion, only you, me, our type of NGOs and government policies can change the scenario. And how? The sir and your institute is doing a great job in empowering a woman, especially when you organize this type of workshop. It directly hit your mindset. It directly hit your mindset. It changed your opinion. It changed the definition of normal. मैंने अभी आपको बताया था कि मदर बोलती है मर्यादा में रह के पढ़ो, या ग्रानीज बोलती है ज्यादा मत उड़ो। वो उनके लिए नॉर्मल था। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी फीमेल। वो उनके लिए एक नॉर्मल की डेफिनेशन थी, बिकॉज दिस पैट्रियार्कल हमारे जो बिलीफ्स है, इश्यूज है, दे आर हैव बीन डीपली इनग्रेव्ड इन द इंडियन सिस्टम। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? लड़का लड़की की तरह रोएगा नहीं और लड़की ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। पर जब इस टाइप की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती है तो दे हिट योर माइंडसेट। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, इसकी फीडिंग बदलती है, यहाँ पे नॉर्मल की डेफिनेशन बदलती है। जब ये डेफिनेशन बदल के आप एक्सेप्ट करोगे नो, बॉय का रोना भी नॉर्मल है और गर्ल का ऊंची आवाज में बात करना, स्पीकिंग आउट भी नॉर्मल है, तो यू आर चेंजिंग द थॉट प्रोसेस। तो नॉर्मल की डेफिनेशन बदल के इस टाइप के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करके आप थॉट प्रोसेस बदलते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट रोल इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो फ्रेंड्स, we are very much blessed to have such a dynamic Prime Minister नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनकी पॉलिसीज आपने सुना होगा। उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की थी कुछ स्टेट्स में कि जो भी प्रॉपर्टी एक फीमेल के नाम से रजिस्टर होती है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं ली जाती है। आई हैव ए वेरी क्लोज फ्रेंड इन द रजिस्ट्रार ऑफिस एंड यू वॉन्ट बिलीव 80% प्रॉपर्टीज सिर्फ फीमेल के नाम से रजिस्टर हुई। बट हाउ इट इज रिलेटेड टू एम्पावरमेंट? In my personal life, although faculty and you guys are sitting, in my personal life, I have seen an educated woman is harassing at workplace, but a female is having property at her name, is getting respect in the family. So this policy is empowering a woman. Again, the Mudra Yojana. I don't know, you must be aware of the Mudra Yojana. उसमें छोटे छोटे लोन्स गवर्नमेंट की तरफ से फीमेल्स को दिए जाते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, आफ्टर दिस टाइप ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इफ यू वांट टू बी ए एंटरप्रेन्योर, तो दिस पॉलिसी इज हेल्पिंग यू, दिस इज एम्पावरिंग यू अगेन। So this, all these policies, all this education is directly related to empowerment. Gandhiji said, if you are educating a man, you are educating an individual. But if you are educating a woman, you are educating a nation. क्योंकि वुमेन का प्रायोरिटी होता है एडुकेट होने के बाद, इफ शी स्टार्ट अर्निंग, तो उसका पहला प्रायोरिटी होता है घर गृहस्थी का सामान, किचन के बाद उसकी पहली कोशिश होती है कि अपने परिवार के हर बच्ची को वो पढ़ा सके। आज का यह तभी सफल होगा जब आप में से यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, तो आज से ये वर्कशॉप तभी सफल होगी जब आप में से हर बच्चा, जब गुड कर्मास की बात आए तो अपने आप को जवाब दे पाओ कि एक गर्ल की प्रॉब्लम दूर करी थी आपने, उसको एजुकेशन से अटैच किया था। आसपास में नहीं मिलती है, कम टू मी, आस्क मी,
You really don't need any money. Just a small step, just a small effort towards education. So this is the crux कि we need to empower a woman, and education is the best tool which can empower all these, like increasing knowledge, self-confidence, awareness about gender equity. All these can be developed through education. मैं नुपुर मैम से बाद में भी चाहूंगी कि एक बार इन बच्चों से लास्ट में पूछें आफ्टर द सेशन कि क्या आपने कभी लाइफ में किसी एक बच्चे को कनेक्ट किया एजुकेशन। ये मुझे लगता है एक हमारे करिकुलम का पार्ट भी होना चाहिए, और इसीलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मैम सोशल वर्क, और इसीलिए आई हैव लॉट्स ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इनफैक्ट, क्योंकि वी आर रनिंग ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम लोग बच्चों के लिए गूगल क्लासरूम पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन, बिकॉज यू नो दिल्ली के अंदर इट इज लाइक ए 1000 पर आवर फॉर 8th क्लास, तो उसमें भी आप जो बच्चे आपको लगता है कि आप पढ़ा सकते हैं फ्रॉम नर्सरी टू 12th और आगे, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। सिर्फ 1 घंटा आपकी लाइफ बदल सकता है, आप किसी के मेंटोर बन सकते हैं। तो लास्ट में अबाउट वुमेन, ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब ए वुमेन, फिर भी मैं कहूंगी जननी हूँ जीवन भी, जननी हूँ जीवन भी, जज्बातों पर मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ सबल हूँ, सशक्त हूँ सबल हूँ, नारी हूँ कमजोर नहीं, दर्पण भी मैं, दर्पण हूँ अक्ष भी मैं, दर्पण हूँ अक्ष भी मैं, तोड़ सके मुझे वो शख्स नहीं, नारी हूँ कमजोर नहीं, आत्मनिर्भर हूँ, स्वाभिमानी हूँ, टूट कर बिखर जाऊं अब वो वक्त नहीं, अब वो वक्त नहीं। And all the boys, my message is कि when you got married तो आपकी स्पाउस भी मेरी तरह बोल सके कि behind my success there is a understanding husband. Thank you so much. Once again, thank you sir, thank you Nupur ma'am for providing this wonderful opportunity to interact with the class. Thank you so much.